fourth year MBBS student from Janasin Medical University. So basically, our today's session is based on research and one of its subtype, which is LT. Achha, regarding my experience, I'll give you a brief intro of my experience. I have worked in more than 10 to 12 projects in multiple domains, like including LT, including narrative reviews, systemic and meta-analysis, and case reports. So I'll share all the things I have learned throughout my journey from like second year till fourth year. I have spent 3 years in this journey and I have learned a lot. So basically, we'll start first with a brief intro. But first, I want to ask few questions to you all. Why you are attending this session? Acha, most of the time I got this answer. Acha, I want this session to be completely interactive. I don't want you all to go with passive learning. I want you all to do the active learning. I'll ask you question. Chat box is open. You can write any question. I'll see the questions at the end, but you can ask anything you find difficult, anything you want to ask, anything you want to just. This session is interactive. I don't want to speak and you don't have to listen. Like, you have to be interactive just to learn. Okay, so first, I want you all to answer this in chat box. Why do you think that you need to know about research, and why do you think research is important? And at the end, the same question: why you are attending this session? Like, what do you think? What is the weightage of research in your medicine journey? Okay, good, great. Acha, although there is no doubt in this thing that research will help you to stand out at the end. If you are staying in Pakistan, at the end, if you are moving, like you are planning to move to any foreign country, or you are planning to give any foreign exam, research will help you to stand out among other candidates. Research will help you to boost your CV. Research will help you to gain a lot. But but most of the people, in fact, our seniors, I just asked one of my senior while starting my research journey that you have published 20 plus papers, and do you actually like doing this stuff? And she answered me no. Like, she don't like doing this thing. She is only doing to boost her CV. Although she is completely right at her place, because at the end हमारे पास इतना वर्कलोड हो जाता है कि हमें उस चीज को करने में मजा नहीं आता. But let me tell you one thing: if you are doing research in a right way, you will actually enjoy it. Like, I personally like to research. I personally like to doing, like, जब भी मेरे पास कोई टाइम फारिग होता है तो मैं उसमें अपना रिसर्च का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे रिसर्च का काम करना अच्छा लगता है. एट द एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च इन एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन. एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च जो है वो किस तरह से मेडिसिन में कंट्रीब्यूट करेगी. एट द एंड आपकी रिसर्च किस तरह से सोसाइटी के एडवांसमेंट या बेटरमेंट के लिए यूज होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20 प्लस रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें और आपको पता ही नहीं है कि आपके किस रिसर्च पेपर में आपने क्या काम किया था और वो किस बारे में है. Most of the people who are planning to give steps, or most of the people who are planning to pursue USMD journey, let me tell you one thing. They won't ask you कि आपके कितने सारे पेपर्स पब्लिश है. दे विल आस्क यू कि आपका रोल क्या था उस पेपर में, आपने काम क्या किया उसमें, आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया. और उस टाइम आपको अपना कंट्रीब्यूशन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा. और अगर आप इस चीज में फेल हुए कि आपको यही नहीं पता हो कि आपने रिसर्च पेपर में काम क्या किया है या आपने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, देन इट, लाइक, उनके ऊपर आपका बहुत खराब इम्पैक्ट जाएगा कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश कर दिए 50 20, और आपको कुछ नहीं पता उस बारे में. ओके, सो like recall this thing कि why you are doing this, why you are attending this session. You are attending this session to learn research. Okay, fine, that's great. But you have to do like impactful researches. You don't have to publish number of papers and you don't have even single clue about the research type or research, what you have done in research. You just collected the data and just submitted and got the authorship. No, you need to know about the research type, research, like you need to have the complete grip of that research topic. Okay, so let me start the screen sharing. I have prepared the slides. Okay, so what is the agenda and workshop overview? We will talk about these things throughout this session. First, we'll talk about the study designs, introduction to research methodologies and their applications.
understanding where LT is in research landscape, like where LT stands in research pyramid, and types of studies. We have different type of research studies, descriptive, observational, intervention. Then we will talk about LT writing, then how we can do literature search, which is the part of every research domain, and then referencing, journal basics, and at the end, Q&A. I'll try to answer all your queries in the easiest possible way. Okay, so basically we have different types of study designs. अच्छा, the purpose of sharing this slide is at the end आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी में काम करना है। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ वेटेज को कंसिडर करके वेटेज के क्राइटेरिया पे अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें। आपके रिसर्च पेपर की जो भी वेटेज हो, इधर एलटी और नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमिक रिव्यू, आपको उस पेपर पे काम करने में एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड जस्ट सो लेट यू नो यू कैन choose your interest, you can choose your domain of interest to write a impactful paper, ठीक है। हमने ये चीज नहीं करनी कि हमने जो है जो रिसर्च की सिर्फ वेटेज है उसी पे काम करते जाएं, उसी पे थोड़ा बहुत काम करना नहीं। अगर आपको अच्छा, आई शेयर द insights based on any foreign exams too, because I am currently preparing for the one, because I know many like juniors came to me and asked that we are writing LT, is it useful for our USMLE journey, is it helpful to get us interviews, like वो ये commonly क्वेश्चन करते हैं कि हम ये पेपर पे काम कर रहे हैं बट ये LT की तो वेटेज ही नहीं है, इसकी तो वेटेज ही। वेटेज हर उस पेपर की है जिसकी ग्रिप है आपके पास, वेटेज हर उस पेपर की है जिसके बारे में आपको कुछ पता है, ठीक है। उस पेपर की बिल्कुल नहीं है जिसमें आपने सिर्फ एक काम करके उस पेपर को बस सबमिट कर दिया, या आपने कोई और ऐसी ऑथरशिप जो आपने खरीदी है उसकी वेटेज नहीं है। एट द एंड उस चीज की वेटेज है जिसके बारे में आपको पता है। फर्स्ट वी हैव द डिस्क्रिप्टिव केस रिपोर्ट्स। इन डिस्क्रिप्टिव वी हैव टू टाइप ऑफ स्टडी टाइप्स, एंड फर्स्ट इज द केस रिपोर्ट। केस, व्हाट इज केस रिपोर्ट? आई गिव द ब्रीफ इंट्रो हियर बिकॉज आई वांट यू ऑल टू नो कि ये क्या चीजें होती हैं, ताकि एट द एंड आप इन चीज के बारे में भी पढ़ सको। अच्छा, one thing I want to reassure you all कि when I started my research journey like 3 years back from XYZ platform, तब आफ्टर अटेंडिंग वर्कशॉप मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आई डोंट नो एनीथिंग, विच इज कम्प्लीटली माई मिस्टेक, बिकॉज मैंने उस वर्कशॉप को सिर्फ और सिर्फ सुना, और सुनने के बाद लैपटॉप बंद कर दिया और एक हफ्ते तक उसको खोला भी नहीं कि मैंने क्या पढ़ा। ऑल तो उन्होंने हमें स्लाइड्स दी थी बट मैंने कुछ नहीं खोला। वन स्पीकर और वन मेंटर विल नॉट टीच यू एवरीथिंग अबाउट रिसर्च। ये जो 1 घंटे का सेशन है, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग आई हैव लर्न थ्रू आउट दीज 3 years, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सर्च थिंग्स, यू हैव टू सर्च थिंग्स बाय योर ओन। आपको क्रॉस सेक्शन पसंद है तो आपको क्रॉस सेक्शन के बारे में खुद स्टडी करनी है, आपको क्रॉस सेक्शन की खुद देखना है कि कौन से सीनियर्स हैं जो क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, और कौन से सीनियर्स हैं जो मुझे इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। आपको खुद चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं। हर एक ही सोर्स आपको 6 चीजें नहीं सिखा सकती, ठीक है। आई टॉक मोर अबाउट LT, बट आई गिव द ब्रीफ इंट्रो अबाउट ईच रिसर्च टाइप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस रिसर्च में क्या चीज हम इस्तेमाल करते हैं और कौन सी रिसर्च किस चीज के बारे में। Case report is basically a simple clinical case. It's not a basically very simple clinical case. It's a clinical case with rare findings. For example, we have the case of anemia. In anemia, we have low RBC count. We have the patient presented with a complaint of fatigue, lethargic, or what we can say. Basically, anemia is are of different kinds. Anemias are of different kinds, like iron deficiency anemia, macrocytic anemia, different kinds of anemia. If I see the case of anemia with some rare finding, like in anemia, patients presented with low back pain, या I guess lethargic की वजह से हो सकता है, या patients presented with some rashes. So it's some rare finding. We don't see normally. We don't see rashes normally in the patients of anemia. So it's just some rare finding. We just figure out some rare finding. We need to report it. So we will write a whole report, which is also known as case report. Case series is similar thing, but in case series we combine multiple patients and their finding, and it's basically case series. Okay. Then we have observational studies. Observational studies include 3 types of studies. First, we have the cross sections. क्रॉस सेक्शंस की एग्जांपल में, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, इधर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो मैं आपको इस चीज से दे सकती हूँ कि यू हैव सीन द क्वेश्चनएयर सर्कुलेटिंग, दैट प्लीज काइंडली फिल दिस क्वेश्चनएयर, इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes. Basically, that type of study is cross sectional study. In cross sectional study, you collect the
you collect the data of people at that certain time, at that specific time. For example, I am leading a research with title, अगर आपने उसका क्वेश्चनर देखा हो तो, perception of medical students regarding robotic associated surgery. It's basically my research paper. So we are circulating this questionnaire. It's the perception of medical student in 2026, either a medical student of first year or second year. It's basically the perception of medical student. They are the it's a basically observational study at that specific time 2026 में स्टूडेंट्स को रोबोटिक एसोसिएटेड सर्जरी के बारे में कितना पता है, और वो इस चीज के वो किस तरीके से परसीव करते हैं, यानी कि उन्हें क्या सही लगता है कि रोबोटिक एसोसिएटेड सर्जरी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए या नहीं, या उन्हें कितना पता है इस बारे में, या उनके क्या थॉट्स हैं। तो ये एट अ स्पेसिफिक टाइम है, तो हम उस चीज का स्नैपशॉट ले लेते हैं कि इस टाइम पे स्टूडेंट की ये परसेप्शन है इस चीज के बारे में, तो इट्स नोन एज क्रॉस सेक्शनल। देन वी हैव द केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में क्या होता है, वी सी द पेशेंट्स, के हमारे पास जो है पेशेंट है लंग कैंसर का, वी हैव द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर, वी विल we have the patient of lung cancer, and then we will go back in time to see what are the risk factor or what are the exposures, जो भी चीज उसने करी थी इन पास्ट जिसकी वजह से उससे लंग कैंसर हुआ। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल दो पेशेंट देखे, एक जिसको लंग कैंसर था, एक जिसको लंग कैंसर नहीं था, हमने उन दोनों को पीछे जाके फॉलो किया और हमें ये पता चला कि जिसको लंग कैंसर था वो पिछले 10 साल से 2 पैक ऑफ सिगरेट्स रोजाना पीता था। ठीक है, और जिसको लंग कैंसर नहीं था वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करता था और बाकी सिगरेट स्मोकिंग उसकी रूटीन में नहीं थी। तो इट्स बेसिकली अ केस कंट्रोल। देन वी हैव द कोहॉर्ट। कोहॉर्ट में क्या होता है हमारे पास, कोहॉर्ट में हम इसका समहाउ, कोहॉर्ट इज समहाउ ऑपोजिट वी कैन से। कोहॉर्ट में हम क्या करते हैं, कोहॉर्ट में हमारे पास जो है एक एक दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक स्मोकिंग और एक स्मोकर्स, और देन अदर ग्रुप इज नॉन स्मोकर्स। वी विल फॉलो देम फॉर 10 years इन फ्यूचर, यानी हम उन्हें उन्हें फॉलो करते रहते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, और आफ्टर स्ट्रेट आफ्टर 10 years फ्रॉम प्रेजेंट हम देखते हैं कि किसमें जो है स्मोकर्स में क्या लंग कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं, या नॉन स्मोकर में लंग कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं। ठीक है, कोहॉर्ट इज बेसिकली समहाउ ऑपोजिट ऑफ केस कंट्रोल। Then we have the interventional type of studies or experimental type of studies, which includes RCTs. RCTs randomized control trials. RCTs में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम similarly we made two groups. One group is used to test any new intervention or any new drug, and the other group is used to test the old intervention, or what we can say a placebo or anything which is already being used. And the new group or the group A is used to test the new drug. Okay. For example, हमारे पास कोई I've been recently working on a drug. I don't know if it's CAR XT, or I don't know how to pronounce it, but I pronounce it as CAR XT. It's mainly used for schizophrenia, but I have just I'm just writing a paper in which CAR XT is used for Alzheimer's. So basically, we have been using a drug to treat a different disease. तो हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, इसमें एक में हम जो है वो अल्जाइमर की कोई भी ओल्ड इंटरवेंशन यूज कर लेंगे जो हम अल्जाइमर के लिए कॉमनली यूज करते हैं, और एक में हम ये ड्रग देंगे। देन वी विल फॉलो टू ग्रुप्स, और फिर उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीटली रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अच्छा, इट्स रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, नाम इसका ये कि हम उसमें सिर्फ उस पेशेंट को वही ड्रग देंगे। वी आर कंट्रोलिंग दैट स्पेसिफिक ग्रुप। ओके, देन वी हैव द सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में हम डिफरेंट स्टडीज होते हैं उसकी जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और उससे हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नरेटिव रिव्यूज, आई हैव टू पब्लिश नरेटिव रिव्यूज। नरेटिव रिव्यूज जो है वो मुझे लिखना सबसे आसान लगता है, वेटेज में मिड में आता है, बट मुझे लिखना आसान लगता है और अच्छा लगता है क्योंकि ये जो है वो एलटीई से समहाउ सिमिलर होता है और इसको लिखने में बहुत इजीली, मतलब आप एक पेपर लिख सकते हो, आपको 2 से 4 लोग चाहिए हार्डली, मतलब हो जाता है 1 महीने में एटलीस्ट हो जाता है नैरेटिव रिव्यू। तो नैरेटिव रिव्यू में आप क्या करते हो, आप समहाउ सिमिलर स्टडीज, नॉट लाइक कंप्लीटली सिमिलर, बट एक जो डिफरेंट स्टडी में जो एक थोड़ा थोड़ा बात हो रही है आप उस सबको कंबाइन करके एक पूरा पेपर लिख देते हो जिसको आप कहते हो नरेटिव रिव्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो थी वो किसी आर्टिकल में कोविड-19 के कार्डियोमेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात हो रही थी, कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स की, सॉरी, किसी आर्टिकल में कार्डियो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात हो रही थी, किसी में कार्डियो किसी में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई, तो आपने एक पेपर कंप्लीट लिखा कि
कार्डियो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19, मतलब आपने डिफरेंट स्मॉल स्टडीज को मिला के एक नरेटिव रिव्यू लिखा है, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हमारे पास जो इस सेशन का व्हाट इज द मेन व्हाट वी कैन से कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन, कि हम ये सिखा सकें कि रिसर्च आपने स्टार्ट कैसे करनी है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। व्हेन आई एम स्टार्टिंग माई रिसर्च, आई वाज टू स्केप्टिकल कि मुझे एलटी लिखना चाहिए या नहीं, या मुझे कौन सी रिसर्च पे टाइप काम करना चाहिए, या मुझे जो है वो किसी सीनियर्स के साथ काम करना चाहिए, वर्कशॉप लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। जब आप पहला स्टेप ले लोगे, और मुझे ऐसा लगता है आप जीरो से तो आगे ही होगे ना, चाहे आप गलत लिखो, चाहे आपका पेपर रिजेक्ट हो, चाहे आपका पेपर एक्सेप्ट हो, या चाहे आप सिर्फ ये सीखो कि आपने काम कैसे करना है, बट एटलीस्ट यू हैव द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपने पहला स्टेप लेना है, आप अब से एक हफ्ते से कुछ आगे ही होगे। तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। मैं आपको ये जो सेशन के एंड में, आई एम 110% श्योर के यू कैन राइट एन एल टी। ओके, आप एक एल टी लिख सकते हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रही हूँ, बिकॉज ये सेशन बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लैंग्वेज में मैं करूंगी कि आप इसके बाद लिख सकोगे एल टी। तो एटलीस्ट स्टार्ट विद एल टी। एलटी अभी कल मैं एक हाँ लाइक अपनी यूएसए में उसके लिए एक सेशन अटेंड करी थी। उसमें जो स्पीकर थे उनका पीडियाट्रिक्स में मैच उन्हें मिला था। तो वो ये बता रही थी कि उनके रिसर्च में 5 एलटीज और सिर्फ आई गेस 2 नरेटिव और एक मेटा थी। तो जो लोग आपको ये कहते हैं कि एलटी का वेटेज नहीं होता, या एलटी जो है वो बहुत लीस्ट वेटेज है, इसको इतना पब्लिश करके कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज वो पेपर आपके लिए इफेक्टिव है, या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या बेनिफिशियल रहेगा, जो पेपर के आपके बारे में आपको पता हो। तो आप ये मत समझो कि एलटी की वेटेज नहीं है, कोई एलटी पे काम नहीं करता, एलटी बहुत इजी है तो इसको हम जल्दी से सबमिट। स्टार्ट वर्किंग, एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ओके, लेटर टू द एडिटर में हमारे पास सबसे पहले जो है उसका पर्पस क्या है। अच्छा, लेटर टू एडिटर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। मोस्टली पीपल वर्क ऑन इंफॉर्मेटिविटी, एटलीस्ट मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं इंफॉर्मेटिविटी लिखूं। क्योंकि इंफॉर्मेटिविटी लिखने का एक तो फायदा, ये क्रिटिक पे मैंने बहुत कम काम किया, इंफॉर्मेटिविटी ही पे ज्यादा मैंने काम किया है। तो इंफॉर्मेटिविटी जो होता है वो होता है कोई न्यू आइडियाज, ऑब्जर्वेशन या कोई क्लैरिफिकेशन पे बेस्ड, ठीक है। वी हैव अगर मैं आपको इस चीज की एग्जांपल इस तरह से दूं कि हमारे पास रिसेंटली तो नहीं, अब से आई गेस 4 साल पहले कंजक्टिवाइटिस जो था वो बहुत ज्यादा पीपल में जो प्रेवलेंट था, ठीक है। तो आई हैव सीन एलटी, मैंने अब से 3 साल पहले देखा था कि लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा एलटी लिखे थे उस टाइम पे, एट दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप देखो कि कौन सी चीज जो है which is basically emerging issue, we can say an emerging issue or a new idea or any observation which is least addressed. This is the clue basically, which is least addressed. The paper or the topic which is already like at the time of COVID-19, many people address the pulmonary complications of COVID-19, but very few people address the cardiometabolic effects of COVID-19. So I just wrote the narrative review based on this topic के कार्डियोमेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर कोविड-19 क्या हो सकती है, यानी कोविड-19 के 10 साल बाद क्या क्या कार्डियोमेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं पेशेंट्स में। तो अगर किसी टॉपिक पे ऑलरेडी एक हमारे पास नरेटिव रिव्यू पब्लिश्ड है या सिस्टमिक रिव्यू पब्लिश, तो उसमें आपके पास 500 to 600 वर्ड का एलटी कोई जर्नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स अ फैक्ट कि कोई आपका इतनी छोटी सी जो ब्रीफ कम्युनिकेशन, एलटी इज बेसिकली अ ब्रीफ कम्युनिकेशन। इट्स हार्डली कंसिस्ट ऑफ 600 वर्ड्स, लाइक 500 to 600 वर्ड्स। कुछ जर्नल 800 to 1000 भी एक्सेप्ट करते हैं, बट इट्स हार्डली 500 to 600 वर्ड्स ब्रीफ कम्युनिकेशन। कोई आपकी इतनी ब्रीफ कम्युनिकेशन क्यों एक्सेप्ट करेगा जब उस चीज पे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े पेपर पब्लिश्ड हैं। तो योर टॉपिक नीड्स टू बी यूनिक, योर टॉपिक नीड्स टू बी रेयर टू मेक इट एंड टिल पब्लिकेशन। अगर आपको अपना टॉपिक पब्लिश करना है तो आपको अपना टॉपिक यूनिक रखना पड़ेगा। आपको अपना टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा रखना पड़ेगा जिसके बारे में बहुत कम बात हुई भी हो, ठीक है। Then we have the critique. Critique is basically a commentary, or critique is basically you need to write a commentary or on already published article. शॉर्ट कम्युनिकेशन इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। कोई भी आपको रिसर्च फाइंडिंग्स मिली, आप उस पर एक शॉर्ट कम्युनिकेशन लिख सकते हो। देन वी हैव द एडिटोरियल, ये भी हमारे पास जो है एलटी के। अच्छा, कुछ जो है
मेंटीज मेरे पास इस क्वेश्चन के साथ भी आए थे लास्ट टाइम के हम जिस जर्नल में सबमिट कर रहे हैं वहां पे जो है एलटी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो व्हेन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू सबमिट योर एलटी, यू हैव टू सबमिट योर एलटी इन एडिटोरियल सेक्शन। ओके, यू हैव टू सबमिट योर एलटी इन एडिटोरियल सेक्शन बिकॉज इट इज द टाइप ऑफ एलटी। तो वहीं पे आप अपना एलटी सबमिट कर सकते हैं, सही है। Okay, respond to published work, add evidence correction to existing research. What you can write in LT, like आप कोई जो है previous existing literature जो है उसमें corrections या उसमें जो gaps हैं उस पे LT लिख सकता है। It's basically known as critique LT। या आप कोई new observation share कर सकते हैं, it's basically known as informative LT। या highlight limitations या गैप्स वही क्रिटिकलिटी में कि इस जो लिटरेचर जो हमारे पास ऑलरेडी लिटरेचर जो है वो पब्लिश्ड है उसमें क्या गैप्स हैं या क्या एरर्स हैं, आप उन्हें भी एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में ये एलटी का कुछ स्ट्रक्चर है। एलटी की लेंथ लेस देन 600 वर्ड्स होनी चाहिए आपकी। Most of the mentees came with more than thousands or 2,000 word LT. Most of the journal do not accept LT more than 800 words. इससे ज्यादा नहीं करते। आपको फिर बाद में उसे कंसाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही आप अपना वर्ड लिमिट अपने दिमाग में रखते हुए एलटी लिखें, क्योंकि एट द एंड आपको फिर उसी चीज को कंसाइज करना पड़ेगा, आपको फिर वही सेम मेहनत वापस करनी पड़ेगी। तो डू remember this thing that your LT should not be more than 600 words. Chat box is open and I am reading all the answers. मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताएं कि चैट बॉक्स में आप लोग किस तरीके से जो है वो बुलियन ऑपरेटर से इसे सर्च करेंगे कि हमें यूज ऑफ कार एक्सटी फॉर शिजोफ्रेनिया नॉट फॉर अल्जाइमर्स। आई गेस मैंने उल्टा बोल दिया है बट यस, वेरी गुड। Zeds, if I'm reading or pronouncing right, it's Zed. Great, Zed. Aisha, good. Shazeen, great. Great, Manal. Okay, I guess you guys are understanding what I'm trying to convey. Great. Okay, that's great. अच्छा, so should we not use too many ends? You can use too many ends. किसने पूछा था ये? You can use too many ends, आयशा, but इससे आपको एक मसला होगा कि आपके पास सिर्फ दो या हो सकता है एक भी रिजल्ट नहीं। यू विल गेट जीरो रिजल्ट बिकॉज कोई भी ऐसा आर्टिकल हो सकता है हो ही ना जिसमें उन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। हो सकता है हो भी बट इट्स रेयर बिकॉज एक ही आर्टिकल में इतनी सारी और आप की इंटरेस्ट की टॉपिक्स के बारे में बात हो सकता है ना हो। यू कैन यूज टू मेनी एंड्स। आप सर्च करके देखें। अच्छा, व्हेन यू विल स्टार्ट सर्चिंग तो आपको उसी तरीके से चीजें एडजस्ट करने आएंगी। मेरा था कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक दफा सर्च करके दिखाऊं एट द एंड, इफ विल गेट द टाइम आई डू सो। बट जब आप सर्च खुद से करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि व्हेन यू नीड टू यूज एंड व्हेन यू नीड टू यूज और एंड व्हेन यू हैव टू राइट नॉट, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, एट द एंड वील प्रैक्टिस, इफ विल गेट द टाइम वील प्रैक्टिस फॉर श्योर। Okay, so moving forward, we have, we have now we have the main thing, or what we can see the most problematic thing about LT के many of the mentees came अच्छा, उन्हें आप जब आप बोलो कि जाएं एक टॉपिक सर्च करके आए, आप उन्हें बता दें इस तरीके से टॉपिक सर्च करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे केम अप विद जीरो टॉपिक्स बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि एलटी के लिए कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना है जो कभी जिसके बारे में बात ही नहीं हो, तो वो टॉपिक हम ढूंढ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ टॉपिक। जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगी, अगर यू इफ यू यूज दोज मेथड्स यू विल फॉर श्योर फाइंड अ गुड टॉपिक एंड you can publish your LT within a month. Okay, first we have the selection criteria. I have already talked a lot about this कि हमारे पास आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए, आपका टॉपिक रेयर होना चाहिए बिकॉज कोई भी आपके टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे ऑलरेडी इतनी चीजें मौजूद हैं, कोई भी आपका LT उस टॉपिक पे नहीं लेगा। तो योर टॉपिक नीड्स टू बी यूनिक। Second most important thing कि if your topic is recently, like if your topic is recent emerging issue, किसी ने उस पर इतनी बात ही नहीं करी होगी। ठीक है, कोविड-19 आया, एक न्यू टॉपिक था, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन अब तक नहीं था, एक ऐसी चीज थी जो सबके लिए न्यू थी, तो लोगों ने उस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे क्योंकि वो एक इमर्जिंग इशू था। एक एक जो चीज थी वो उसके बारे में बहुत कम एड्रेस किया गया था, तो वो चीज बहुत कम बात की गई थी। कंजक्टिवाइटिस आया, उसके बाद मॉन्की पॉक्स आए, इन सब चीजों के बारे में एट दैट टाइम वो बहुत इमर्जिंग इशू होते थे, उस चीज के बारे में लिटरेचर नहीं मौजूद था, तो लोगों ने उस चीज पे बहुत काम किया। Second thing is
चूज रीसेंट पब्लिकेशंस। अगर आपको किसी चीज पे क्रिटिक करनी है, क्रिटिक भी लिखनी है, तो आपको कोई रीसेंट पब्लिकेशन चूज करनी है। इससे ही होगा, क्योंकि अगर रीसेंट पब्लिकेशन होगी तभी आपकी क्रिटिक, अच्छा एक चीज के बारे में बात हुई, आपने उस पर रिसेंटली क्रिटिक लिखा, उस चीज को आपकी पब्लिश होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। यू हैव टू लुक फॉर गैप्स। अगर किसी भी स्टडी है, आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दीज थिंग्स, ठीक है, मैं इसको फिर भी एक दफा रिपीट कर दूं। यू हैव टू लुक फॉर गैप्स, ठीक है, या अनक्लियर लिटरेचर है, किसी भी किसी ने कोई लिटरेचर जो है वो पब्लिश करिए, बट आपको लगता है कि इस चीज पे ये चीज ऐड होनी चाहिए, कि ये चीज इस चीज में, इस लिटरेचर में ये गैप्स हैं, तो यू कैन राइट एलटी अबाउट दिस थिंग टू। और इसके अलावा ओवरलुक एस्पेक्ट्स, जिस चीज के बारे में बात है, या न्यू इम्प्लीकेशन से मेरा मुराद है कोई न्यू ड्रग है, ठीक है, आप एफडीए की वेबसाइट पे गए, आपने देखा कि ये न्यू ड्रग जो है वो पार्किंसंस के लिए इंट्रोड्यूस हो रही है या एफडीए अप्रूव हुई है, यू कैन राइट एलटी ऑन दैट ड्रग टू। ठीक है, कोई न्यू इम्प्लीकेशन है, आप उसके बारे में भी एलटी लिख सकते हैं। टॉपिक कैटेगरीज में वी हैव द रिसर्च गैप, या ये सब चीजें उसी चीज से रिलेवेंट है जो हम बात करके आ चुके हैं। अच्छा, सर्च स्ट्रेटेजीज, सर्च डेटाबेसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है पबमेड। पबमेड क्या है? पबमेड इज बेसिकली अ वेबसाइट वेयर यू कैन सर्च, वेयर यू कैन डू योर लिटरेचर सर्च। जो मैं आपको बुलियन ऑपरेटर्स का यूज बता रही हूँ, ये भी आपने पबमेड पे ही जाके करना है। गूगल स्कॉलर इज समहाउ सिमिलर, पबमेड की तरह ही है। गूगल स्कॉलर भी, ये भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पे जाके आपने अपने जो है बुलियन ऑपरेटर्स के थ्रू सर्च करना है, एंड देन यू विल गेट ऑल द लिटरेचर सर्च। जो टॉपिक के बारे में आपको लिटरेचर सर्च करना है वो आपको मिल जाएगी। कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे जो है वो ओपन एक्सेस होते हैं, क्लोज एक्सेस होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी क्या होता है। अच्छा, लुक फॉर गैप्स, एरर्स और डिबेट्स, ठीक है, ये वही वाली बात है जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक एंड फोकस्ड, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एलटी। कुछ चीजें हैं जो कि मैंने कॉमनली मिस्टेक्स जो नोटिस करी हैं, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी कंसाइज, ठीक है, 1000 या 2000 वर्ड्स का एलटी लिखने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपको चाहिए ही शॉर्ट, वो इतनी डिस्क्रिप्टिव लिखने का फायदा नहीं है। नरेटिव लिख रहे हो आप, फिर भी आपको उसके लिए अगर वर्ड चाहिए, लेकिन इतना जो है वो आपको एलटी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एड वैल्यू, अच्छा, दिस इज अ थिंग आई नीड टू एड्रेस, जो कि बहुत लोग कम बात करते हैं। यू जस्ट डोंट नीड टू समराइज द ओरिजिनल पेपर, सही है। यू हैड टू एड योर ओन एलिमेंट, सही है। आपने ये नहीं करना कि आपने मल्टीपल जो है वो जगह से यहाँ से इस नरेटिव रिव्यू से आपने ये पार्ट लिया, यहाँ से लिया और एक एलटी लिख दिया, नहीं। यू हैव टू एड योर ओन एलिमेंट एट द एंड व्हेन यू आर राइटिंग कंक्लूजन। जब आप एलटी का कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, यू हैव टू सजेस्ट कि इस चीज की, हमारी जो रिसर्च की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, या हमारे जो रिसर्च है उसमें क्या गैप्स हैं, या जो है हमें फ्यूचर क्या ऐसी स्ट्रेटजीज लेनी चाहिए जिससे ये चीज जो है वो प्रिवेंट हो सके। तो यू हैव टू एड योर ओन एलिमेंट, यू डोंट नीड टू राइट द, लाइक आपको कोई समरी नहीं लिखनी कि मैंने यहाँ से ये चीज, यहाँ से ये चीज उठाई और ये इस तरह से मैंने एलटी लिख दी। और मोस्ट ऑफ द मेंटीज वो इससे भी एक बुरी चीज करते हैं, वो पूरी चैट जीपीटी से एलटी लिखवाते हैं, उससे गलत साइटेशन देते हैं, उससे पूरी गलत साइटेशन से लिखी हुई गलत एलटी आके दे देते हैं कि हमने एक दिन के अंदर काम कर लिया। आप चैट जीपीटी से जो भी काम कराएंगे वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है, सही है। इतना एक्सपीरियंस अगर मुझसे नहीं भी हुआ तो जर्नल जो है वो रिजेक्ट कर देगा, वो आपका ऐसा एलटी रखेगा ही नहीं। तो आपने वो काम करना है जो इम्पैक्टफुल हो, जिसमें जो ऑथेंटिक हो। ऐसा काम करना ही नहीं है जो रिजेक्ट हो जाए, आगे जाके वापस से आपको पूरा काम करना पड़े। और चैट जीपीटी की साइटेशंस पे बिल्कुल नहीं जाना। चैट जीपीटी जो साइटेशंस देता है वो गलत होती हैं, 99% वो गलत होती हैं। तो प्लीज डोंट गो फॉर चैट जीपीटी साइटेशन, या पूरा एलटी जो है कि 500 वर्ड्स का ही तो है चैट जीपीटी से नहीं। ऑल्सो यू कैन टेक हेल्प, उसमें भी आपको बाद में ह्यूमनाइजर यूज करना होता है, आपको चैट जीपीटी के काम को वापस ह्यूमनाइज करना होता है। यू कांट यूज दैट चैट जीपीटी का एग्जैक्ट पैराग्राफ आप नहीं यूज कर सकते। यू हैव टू यूज द ह्यूमनाइजर। कौन सा ह्यूमनाइजर यूज करना है, किस चीज से रिफ्रेशिंग करनी है, आई शेयर द लिंक्स, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। यूज प्रोफेशनल टोन, फॉलो गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होती हैं? यू हैव रिटन एन एलटी बेस्ड ऑन टॉपिक अबाउट जीआई, ठीक है, कोई जीआई कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड आपने एलटी लिखा, यू हैव टू फाइंड अ जर्नल, ठीक है। जर्नल फाइंड करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। देर इज नो बैड थिंग अबाउट दिस। आप जर्नल फाइंड करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करें, या कोई भी जर्नल आप फाइंड करें, उसका आप जाके देखें उसके ऑथर गाइडलाइंस में कि वो किस किस टॉपिक से रिलेटेड एलटी सब एक्सेप्ट करता है, ठीक है। देन यू विल सबमिट योर एलटी। जनरल गाइडलाइंस के बारे में मैं आगे भी जिक्र करूंगी, वो वहीं पे मैं डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। डोंट्स,
डोंट यूज अनसपोर्टेड ओपिनियंस, ठीक है? कोई भी चीज अगर आपने एक सेंटेंस भी लिखना है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम रेफरेंस, ओके? इट मस्ट बी, अच्छा रेफरेंस और साइटेशन एक चीज है। मेरे पास एक दफा एक मेंटी आई थी, वो पूछ रही थी कि रेफरेंस और साइटेशन क्या होता है। तो रेफरेंस और साइटेशन सेम चीज होती है, ये साइनोनियम से रेफरेंस और साइटेशन आर द सेम थिंग, ठीक है? नो पर्सनल अटैक्स, यू डोंट नीड टू। अगर आप क्रिटिक भी लिख रहे हैं तो क्रिटिक लिखते वक्त मैंने बहुत ज्यादा मेंटीज को देखा है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो पर्सनल अटैक जो है हार्श टोन यूज करते हैं। नहीं, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। डोंट इग्नोर वर्ड लिमिट्स, वही वही बात है, अवॉइड ओवरलैपिंग रेफरेंसेस। रेफरेंसिंग आपने ध्यान से करनी है। टोटल 5 रेफरेंसेस, अगर आप उसमें मिस्टेक करेंगे तो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेबल, ठीक है? आपने रेफरेंसेस टोटल 4 to 5 होते हैं, उसको ध्यान से करने किस तरह करना है, आई विल शेयर द ब्रीफ इनसाइड। अच्छा, वी हैव 3 parts ऑफ एल टी: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन, अच्छा एक चीज जो ऑलरेडी इट्स लाइक हार्डली 500 to 600 वर्ड्स, तो आपने ये चीज दिमाग में रखनी कि इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी 100 to 150 वर्ड्स और मैक्सिमम 200 वर्ड्स, क्योंकि बॉडी में आपकी मेन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इट्स बॉडी। तो बॉडी में आपको ज्यादा वर्ड काउंट देना होगा, एंड देन कंक्लूजन में फिर आपको इंट्रो की तरह शॉर्ट वर्ड काउंट देना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ वर्ड काउंट 100 से 200 150 ज्यादा एक्सीड नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी जो है वो उसमें आपके पास वर्ड काउंट लिमिट शॉर्ट हो जाएगी। 1 to 2 सेंटेंसेस में आपने लिखना है करंट लैंडस्केप। आपने जो है बताना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को आपका क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। आपने ब्रीफ ओवरव्यू दिया कंडीशन और टॉपिक का कि जो है हमारे पास मंकी पॉक्स जो है वो इतना प्रेवलेंट है, इतने लोगों में हुआ है। अच्छा, यू हैव टू, व्हेन यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिक, आपको ओरिजिनल पेपर कोट करना है, ओके? ओरिजिनल पेपर का मेरा ये मतलब कि जिस पेपर ने वो चीज फर्स्ट टाइम कोट करी थी कि इतने नंबर ऑफ पीपल को इस टाइम पे इतने लोगों को मंकी पॉक्स हुआ हुआ है, ठीक है? यू हैव टू गिव द साइटेशन ऑफ दैट ओरिजिनल पेपर। प्लीज डू रिमेम्बर दिस थिंग, ओरिजिनल पेपर की साइटेशन ही स्टैटिक्स यूज करते हुए हम यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद करंट ट्रीटमेंट का आपने, अच्छा आपने ब्रीफ कॉन्टेक्ट सेटिंग करी, आपने जो स्टैंडर्डाइज थेरेपी दी, थेरेपी तो यहाँ पे नहीं, मतलब आपने बता दिया कि इतना प्रेवलेंट है और हम इस चीज के बारे में इसकी बात करना जरूरी है, एंड देन एट द एंड आपको जो है आपको ये बताना है कि हम इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसमें भी आपको जो है वो अपना एलटी लिखते वक्त इस चीज में भी बहुत ज्यादा कंसाइज रहना है, सही है? इंट्रोडक्शन का वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा कम होता है, तो आपने उसी तरीके से लिखना है। मेन पार्ट जो है हमारे एलटी का वो बॉडी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना है, और इसमें आपने अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट देना है कि मंकी पॉक्स इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई हम इस चीज के बारे में बात करें, और ये चीज जो है बहुत ज्यादा लीज एड्रेस है इस टाइम पे। और जो मंकी पॉक्स है जो पेशेंट्स हैं उनमें ये कंप्लेंट्स हमें देखने को मिल रही है, तो यू नीड टू एड्रेस योर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, ताकि एक ऑथर जर्नल जो है वो आपको उसको उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट सबसे पहले रखना है, सही है? सबसे आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और की पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं बनाने, ठीक है? अक्सर मैं एलटी में पॉइंट्स भी बनाते, पॉइंट्स नहीं बनाने, एलटी में पॉइंट्स नहीं होते। यू कैन मेक पैराग्राफ्स बट डोंट नीड टू मेक पॉइंट्स। और आपके जो है पैराग्राफ्स में लॉजिकल फ्लो होना, स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी इस चीज के बारे में बात करें देन आप एक चीज स्किप करके दूसरी चीज पे आ गए, नहीं। जो आर्ग्यूमेंट या जो चीज आपने शुरू करी है उसे कंप्लीटली कंसाइज रहना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज के बारे में आपने बात करनी है उसे एक्सप्लेन किए बगैर दूसरे टॉपिक पे मूव कर जाना है, नहीं। उसके बाद हमारे पास बॉडी पार्ट 2 है, उसमें भी यही चीजें हैं, ठीक है? एक चीज और, मोस्ट ऑफ द जर्नल्स जो है वो एलटी के साथ टेबल्स और फिगर एक्सेप्ट करते हैं, बट टेबल्स और फिगर जो है वो जरूरी नहीं होते, इट्स नॉट मैंडेटरी टू सबमिट टेबल्स एंड फिगर्स। अच्छा, एलटी में जो आपने टेबल्स और फिगर्स और चार्ट्स, व्हाट वी कैन से, मोस्ट ऑफ द जर्नल्स उनके लिए मैंडेटरी नहीं होती हैं चीजें, बट दे डू एक्सेप्ट हाउ टू मेक टेबल्स फिगर्स एंड चार्ट्स। आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज सर्च, आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, you can find the best video just to learn how to make a single table within 5 minutes, ठीक है? तो कभी भी कोई भी चीज अगर आपको नहीं आ रही हो तो मुझे ऐसा लगता है उसको सीखने के अब तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। इफ यू वांट टू राइट एन एलटी, स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड एन एलटी। आप एक एलटी रीड करें, ठीक है? यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी हैं, सेशन ज्यादा अच्छी है। आप वो वीडियोस देखें और डू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? आप वो वीडियो देखने के फौरन बाद लिखना शुरू करें, एंड डू टेक हेल्प फ्रॉम एनी सीनियर। उनसे आप अपनी जो लिटरेचर जो भी आपने लिखा है, जो भी रिसर्च पेपर लिखा है, उसको एक दफा रिव्यू कराएं और उसे सबमिट कर दें। रिजेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, डू री राइट।
वापस लिखे। सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि चीजें कैसी हैं। यूट्यूब में हर चीज की वीडियोस है, आप यू नीड टू जस्ट सर्च। आप अपनी 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 जो है कह रहे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपको 15 मिनट्स की वीडियो चाहिए, 20 की चाहिए, यू कैन रीएडजस्ट एनीथिंग। सो स्टार्ट राइटिंग। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है बॉडी में हमारे पास टेबल्स, फिगर्स एंड चार्ट्स भी जो है मोस्ट ऑफ द जर्नल्स दे डू एक्सेप्ट। और इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स यूज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देती हैं हमारे एलटी में, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स के साथ चार्ट्स अक्सर यूज करते हैं। तो वो भी हमारे एलटी को बहुत ज़्यादा उसके सबमिशन, उसके जो एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है। लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन और रेफरेंसेस। कंक्लूजन में आपने जो है वो अपना आइडिया, आपने जो भी अपनी एलटी जिस भी टॉपिक पे लिखी है, हाउ योर एलटी विल कंट्रीब्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, के वो किस तरीके से आगे काम आ सकती है। अगर आपके एलटी में अगर आपने लिटरेचर सर्च करी, फॉर एग्जांपल एक कोविड 19, ये पैंडेमिक है और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया लोगों ने, तो इसके बारे में सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो यू कैन राइट के मेरी रिसर्च स्टडीज में, मेरे जो रिसर्च पेपर है उसमें ये गैप्स हैं और इसके पीछे ये रीजन है कि हमारे पास इनफ स्टडीज ही नहीं है कि हम इस चीज को लिख सकें या इस चीज के बारे में बता सकें। तो यू जस्ट नीड टू मेंशन कि मेरी जो रिसर्च स्टडी में गैप्स हैं उनके बिहाइंड रीजन ये है। ठीक है। और आप जो है इसके बाद आप अपने कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि आप फ्यूचर जो रिसर्च डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए। कि अगर हमारे पास मंकी कोविड 19 की कोई भी हमारे पास जो है वो वैक्सीन नहीं है, तो हमें इस चीज की तरफ आगे अपनी फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन रखनी चाहिए कि हमें जो है न्यू वैक्सीन बनानी है ताकि हम ज्यादा ज्यादा जो है इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। या जो है आप ये भी बता सकते हैं कंक्लूजन में, या ये भी आपको बताना चाहिए कि ये जो आपकी स्टडी है ये एट द एंड किस तरीके से मतलब कि आपको आपको आप आपको इस स्टडी के क्या गैप्स हैं, इस स्टडी पे आपको कितना जो है आपने आपकी स्टडी में गैप्स कितने हैं, आपने इस स्टडी को क्यों लिखा है, और इस स्टडी में फ्यूचर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए रिसर्च की। ओके। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास रेफरेंस गाइडलाइंस हैं। अच्छा, हम रेफरेंस को अब देख लेते हैं। ओके। सो यू नीड टू राइट पबमेड ऑन गूगल, और आपके पास जो फर्स्ट सर्च आएगा ऑप्शन, उसमें आपने पबमेड पे चले जाना है। ठीक है। ये आपके पास जो आ जाएगी सर्च, यहाँ पे आपने अपना जो भी टॉपिक सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च करना था कोविड 19। ठीक है। देन वी विल यूज बुलियन ऑपरेटर, एंड उसके बाद हम सर्च करेंगे कार्डियक। अच्छा, सबसे पहले हम, अच्छा जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे, वी इट्स बेटर टू चूज अमंग देम, बिकॉज उससे आपके पास जो लिटरेचर सर्च आएगा और जो रिसर्च पेपर्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे और आप ज़्यादा इजीली जो है अपने टॉपिक्स को अप्रोच कर सकते हैं। सो आई चूज द फर्स्ट ऑप्शन, कोविड 19 एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अच्छा, कोविड 19 एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यू कैन सी हियर आई गेट 29,372 रिजल्ट। एंड को यूज करने के बावजूद मेरे पास इतने सारे रिजल्ट्स आए। ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पे आ रहा है कोविड 19 एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोविड 19 एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मेरे पास वो सारे रिजल्ट आ गए जिसमें कोविड 19 और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात हो रही थी। अब अगर मुझे अपना रिजल्ट और कंसाइज करना है या मुझे कोई ऐसा पेपर लिखना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नॉट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो मेरे रिजल्ट यहाँ पे कुछ जो है वो एक मिनट पहले मैं इस पे क्लिक कर लूँ। मेरे रिजल्ट जो है वो कुछ जो है वो कम हुए। 29,000 से आई हैव 26,132 रिजल्ट। अब इसमें जो है वो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज जो और का यूज था जो मैं मेंशन करना भूल गई, यू कैन यूज और बिटवीन साइनोनियम्स टू। यानी अब हर आर्टिकल में जो हमारे पास लंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थी कोविड 19 की, लाइक नमोनिया और कफ, उनको पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस करके एड्रेस नहीं किया गया होगा। तो अगर मुझे कोई और जो है वो मतलब लंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन का वर्ड जो मुझे लगता है कि कोविड 19 में के आर्टिकल्स में यूज किया गया होगा, तो मैं और करके यूज करूंगी। इट मीन्स वी कैन यूज
और बिटवीन टू साइनोनियम्स के, अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसर्च पेपर हो जिसमें परमी कॉम्प्लिकेशन नहीं यूज करी गई मतलब परमी कॉम्प्लिकेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया हो, या कोई और वर्ड यूज किया गया हो उसी सेम चीज के लिए, तो मैं और करके वो वर्ड लिख दूंगी। ओके, सो अब हम रेफरेंसेस भी यहीं से देख लेते हैं। हम किसी भी फ्री पीएमसी पेपर की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेपर, मैं जैसे इसे क्लिक करूंगी मेरे पास पेपर खुल जाएगा। फुल टेक्स्ट लिंक जो होता है कंप्लीट पेपर का आपको साथ, कुछ पेपर्स जो होते हैं उनका होता है, ओपन एक्सेस जो होते हैं उनका होता है, जो क्लोज एक्सेस होते हैं उनका नहीं होता। तो हमारे पास फुल टेक्स्ट लिंक में हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, फ्री फुल टेक्स्ट लिंक्स में। देन वी हैव थ्री ऑप्शंस हियर। फर्स्ट ऑप्शन इज site, third one is collections, and second one is collections, and third one is permalink. You just need to click on site. यहाँ पे आपके पास ये पूरी साइटेशन आ गई है, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ साइटेशन, इट्स वेदर इट्स एनएलएम, एएमए, एपीए, एमएलए, ठीक है। यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर साइटेशन टाइप एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस कॉपी। क्लिक, जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे पूरी साइटेशन जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी। और ये साइटेशन आपने अपना पूरा एलटीई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखने के बाद रेफरेंसेस की हेडिंग डाल के उसके अंदर आपने जाके पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट्रो लिखा और मैंने इंट्रो में पहली लाइन लिखी कि कोविड 19 इज हाईली प्रेवलेंट, कोविड 19 फर्स्ट जो है वो इमर्ज हुआ फ्रॉम चाइना इन 2019 फ्रॉम वुहान चाइना, ठीक है। अब ये लाइन मैंने फॉर एग्जांपल इसी आर्टिकल से ली जो मैंने खोला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे साइट पे गई, मैंने ये पूरी साइटेशन जो है वो कॉपी करी और मैंने वो साइटेशन जहाँ पे मैंने वो लिखी है लाइन। वन थिंग मोर आई थिंक मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, आपको ये लाइन डायरेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट लाइन की, द कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट कोरोना वायरस डिजीज 2019 आर वेल डिस्क्राइब्ड, मैं अगर ये लाइन या ये सेंटेंस अपने आर्टिकल में लिखना चाहती हूँ या साइट करना चाहती हूँ, तो आई नीड टू फर्स्ट रीफ्रेज इट, ठीक है। मुझे जो है वो इसे रीफ्रेज करना है, रीफ्रेजिंग के भी टूल होते हैं, मैं शेयर कर दूंगी लिंक अगर मुझे मिल गया तो यू नीड टू फर्स्ट, अच्छा रीफ्रेज आपको जरूरी है आप टूल से करें, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू रीफ्रेज इट, ठीक है। आपको कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है एक्यूट कोरोना वायरस के, उसको ये पूरी सेंटेंस को आपको रीफ्रेज करना है एंड देन यू विल यूज दिस लाइन विद, अगर आपने पूरी लाइन यूज करी देन यू हैव टू राइट वन इन ब्रैकेट। उसके बाद कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद आपने रेफरेंसेस में जाना है और नीचे जो है वो वन लिख के ये पूरी साइटेशन वहां पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये रेफरेंस था। रेफरेंस करना भी मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस के जो स्टाइल हैं वो आपको ऑथर्स जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं जिस भी जर्नल में आपने, फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट द जर्नल। जब आपने जर्नल फिगर आउट कर लिया देन you need to find their author guidelines. Author guidelines for specific type of research paper is different. Like for LT, it's different. For systemic review, it's different. फॉर एल आपने देखना है कि उस ऑथर की क्या गाइडलाइंस हैं, उन्होंने कितने वर्ड्स का एल मांगा हुआ है, उन्होंने कौन सी साइटेशन स्टाइल मांगा हुआ है, उन्होंने फिगर्स उनको चाहिए या नहीं, तो ये सब चीजें आपको वहाँ ऑथर गाइडलाइंस में पढ़नी है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योर एल अकॉर्डिंग टू दैट ऑथर ऑथर लाइन द गाइडलाइंस, ठीक है। आपने वहां से वो ऑथर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना एल पूरा प्रिपेयर करना है एंड देन यू नीड टू सबमिट इट। आई थिंक दैट्स ऑल। अच्छा, जनरल सबमिशन भी मैं थोड़ा सा उसकी भी ब्रीफ दे देती हूँ आप लोगों को। जनरल सबमिशन जो होता है हमारे पास, आपने फॉर एग्जांपल मैंने कोविड 19 के बारे में या कार्डियोवैस्कुलर आउटकम्स ऑफ कोविड 19 के बारे में एक रिसर्च पेपर सब पब्लिश करना है या सबमिट करना है। सो आई विल फाइंड अ जर्नल जिसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस या जो कार्डियक इश्यूज हैं उसके बारे में वो आर्टिकल्स एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। या उसके बारे में अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई न्यूरो का टॉपिक लिया है तो मुझे ऐसा जर्नल ढूंढना है जो न्यूरो से रिलेटेड आर्टिकल सब एक्सेप्ट करता हूँ। व्हेन आई विल फाइंड द जर्नल, उसके बाद मुझे देखना है उसके फ्यू क्राइटेरिया, ठीक है। जर्नल को सेलेक्ट करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन इज इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, आप जर्नल के अबाउट में जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जर्नल जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। द पीपल हु आर प्लानिंग टू परस्यू एनी फॉरेन एग्जाम, उनको मैं कहूंगी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो पबमेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होने चाहिए, इट्स गुड, ठीक है। पबमेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुए आर्टिकल की वेटेज अच्छी है। उसके बाद आपने जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर देख लिया, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर मोर देन 3 इज गुड, लेस देन 3 इज लाइक ठीक है, बट मोर देन 3 इज गुड। वहां से आपने अपने जो है, अच्छा
वन मोर थिंग, एपीसी जर्नल की, कुछ जर्नल्स जो हैं वो आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करने के, पब्लिश करने की उनकी चार्जेस होती हैं, विच इज आर्टिकल प्रोसेसिंग, आई गेस, हाँ, आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस। तो उसमें आपको वो फीस सब पे करनी पड़ती है फॉर publishing your article. You need to pay that fee. So you have to reassure कि आप कोई ऐसा जर्नल ढूंढें जिसकी एपीसी ना हो। ठीक है, एपीसी जिसकी नहीं होती उन जर्नल्स में अपना आर्टिकल्स पब्लिश करें। उन जिनकी एपीसी फीस होती है, फिर यू हैव टू गिव द एपीसी फीस इन मोस्टली डॉलर्स, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जर्नल जब आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ अपना आर्टिकल उठा के नहीं देना होता। यू हैव टू मेक द कवर पेज, यू हैव टू मेक द फ्रंट पेज और कवर लेटर, और ये सब चीज़ें जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको सब ऑथर गाइडलाइंस में लिखा हुआ मिल जाएगा कि उनको कवर पेज पे क्या क्या चाहिए, उनको कवर पेज पे क्या टाइटल चाहिए या नहीं, उनको कवर पेज पे ऑथर्स की क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। So just have to read the author guidelines and organize your paper according to those author guidelines. That's it. That's all from my side. I think कि मैंने कोशिश करी है कि मैं जितनी चीज़ें कवर कर सकती थी मैं कवर कर सकूं. If you want to ask any question, please feel free to ask. अच्छा, what is the best format for LTE? ये आपके जर्नल के अकॉर्डिंग होता है। कुछ जर्नल जो है वैंकूवर, मोस्टली जर्नल्स वैंकूवर एक्सेप्ट करते हैं। मैंने जितने जर्नल्स में सबमिट किया वो ज़्यादातर वैंकूवर ही एक्सेप्ट करते हैं। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड इन दिस थिंग इन ऑथर गाइडलाइंस। हाउ डू वी कम अप विद अ यूनिक टॉपिक? अच्छा, इस चीज में मैं एक और आप लोग को ट्रिक बताना चाहूंगी, जो ट्रिक मैंने यूज करी थी और मुझे मतलब बहुत सारे मेंटीज को इस तरीके से टॉपिक मिल जाता है। आप दो कॉमन टॉपिक्स लें और उनको कंबाइन करके एक यूनिक टॉपिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 बहुत कॉमनली बात करा हुआ टॉपिक है इस टाइम पे, ठीक है। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली डिस्कस होती हैं, बट कार्डियो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 ये चीज डिस्कस नहीं हुई। तो यू कैन कंबाइन टू व्हाट वी कैन से कॉमन टॉपिक्स एंड मेक अ यूनिक वन और अ रेयर वन। दिस इज अ थिंग जो बहुत सारे मेंटीज को एक अच्छा टॉपिक ढूंढने में बहुत हेल्प करती है। हाउ टू फाइंड नो एपीसी जर्नल? यू कैन फाइंड अ नो एपीसी जर्नल थ्रू चैट जीपीटी, और यू कैन जस्ट सर्च, और आपको जो जर्नल मिल रहा है आप उसके अबाउट में जाएं, देखें क्या वो उसकी एपीसी है या नहीं। अगर उसकी एपीसी नहीं है तो इट्स गुड टू गो। How can we support our every sentence with reference when we can only 4 to 5 you can reuse your references। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक references को एक दफा यूज करें। You can use that reference multiple time। like आपने first reference शुरू में यूज किया, you can use first reference at the end too। कोई इसमें restriction नहीं है आपके पास। How to overcome the challenges of finding a journal for INF informative? अच्छा, इसमें आपके पास challenges को आपने खुद कोप अप करना है, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक द वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। अगर मुझसे कोई भी काम दे दे पर मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का काम नहीं करना होता, क्योंकि मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का काम पसंद नहीं है। सो आई नो इट्स अ बिट चैलेंजिंग, बट अगर आप जो है चैट जीपीटी या थोड़ा सा ढूंढें तो यू कैन फाइंड अ गुड जर्नल, मिल जाता है जर्नल। हाँ, उसको बार बार फिर आपको जो है वो एक्टिव रहना पड़ता है, ईमेल के थ्रू चेक करना होता है कोई आपको पास जो है वो मॉडिफिकेशन की ईमेल तो नहीं आई हुई। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अगर आपका जर्नल कोई आपका आर्टिकल रिजेक्ट कर दे तो आप उसे वापस सबमिट नहीं कर सकते। यू कैन सबमिट योर आर्टिकल, यू कैन री सबमिट योर आर्टिकल। आप उसमें मॉडिफिकेशन करके जो वो जर्नल मांग रहे हैं या तो उसमें या किसी और जर्नल में कर सकते हैं वापस। डू पबमेड जर्नल चार्ज एपीसी? फ्यू पबमेड जर्नल डू नॉट चार्ज, बट कुछ करते भी हैं। हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड मेंटीज? You are not going to find mentees. I think if you are planning to write an LD, first you need to find a mentor. So you need to find a mentor. Basically mentees are a group of people जो एक mentor के अंडर काम करें और उनके थ्रू वो LT, लाइक वो उन्हें जो completely गाइड करते रहें और mentees अपना LT या कोई रिसर्च पेपर लिख सकें। Hey, I mistakenly left the meeting. Where can we find the author guidelines? You can find the author guidelines in journal। जब आप जर्नल के होम पेज पे जाएंगे तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स बने होते हैं अबाउट ऑथर्स गाइडलाइन, वहीं पे आपको ऑथर गाइडलाइंस मिलेंगी। हाउ कैन वी यूज एन आर्टिकल फ्रॉम वन जर्नल एंड सबमिट अनदर? Can we use an article? You can use the information in that article and write your own research paper, and then you can submit it in another journal. Okay. First author and corresponding author can be different. Yes, first author and corresponding author can be different. Um, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट ऑथर हो वो ही corresponding author हो।
Could you please repeat about citations? Yes, I can. Citations जो होती हैं, citation और references, basically they both are the same things. Citations क्या होती हैं? आपको जो भी अपने सेंटेंस लिखना है अपनी रिसर्च पेपर में, वो आपने खुद से नहीं लिखना. जैसे फॉर एग्जांपल हम यूजली सेल्फ राइटिंग करते थे. यू डोंट नीड टू डू सेल्फ राइटिंग. यू हैव टू राइट एवरीथिंग जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है. आपने उसी से जो है अपने इंटरेस्ट के जो स्टेटमेंट है वो लेनी है. एंड यू नीड टू रीफ्रेज दैट स्टेटमेंट. आफ्टर रीफ्रेजिंग दैट स्टेटमेंट यू कैन यूज दैट स्टेटमेंट विथ साइटेशन. जैसे आपने वो स्टेटमेंट लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड अ स्टेटमेंट कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 आर यूजुअली सीन इन ओल्डर पेशेंट्स. ठीक है, अब ये मैंने स्टेटमेंट एक आर्टिकल से ली. आई हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट. मैं इसे रीफ्रेज करूंगी सबसे पहले कि मेनी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आर मोस्टली सीन इन ओल्डर पेशेंट. ये मैंने कर दिया इसे रीफ्रेज. ओके, आफ्टर रीफ्रेजिंग आई यूज दिस स्टेटमेंट विद फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट लाइन है इंट्रो की, तो मैं देन ब्रैकेट में 1 लिखूंगी. आपको जो मैंने आर्टिकल भेजा था, आप में से कितने लोगों ने वो रीड किया? ठीक है, इफ अगर आपने वो आर्टिकल रीड किया, यू कैन सी वहां पे जो सेंटेंस है उसके बाद उसकी रेफरेंस मौजूद है. ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो आर्टिकल की 1 लिख दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपका पहला आर्टिकल था जो आपने यूज किया है, आपने अभी लिखना स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई इट्स योर फर्स्ट आर्टिकल यू आर यूजिंग. वहां पे आपने 1 लिख दिया. एंड एट द एंड जब आप पूरा अपना एलटी लिख लेंगे इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यू विल गिव द हेडिंग ऑफ रेफरेंसेस. इन रेफरेंसेस हेडिंग वहां पे आप जाके पूरी साइटेशन कॉपी करेंगे और वहां पेस्ट कर देंगे. दैट्स इट. ये पूरा रेफरेंसिंग का मेथड है जो कि बहुत इजी है. और मुझे जब अपनी फर्स्ट वर्कशॉप में मेंडले से सिखाया गया था, ऑल तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेंडले इज अ रेफरेंसिंग टूल, बट ये बहुत इजी है. मुझे लगता है मैनुअल रेफरेंसिंग करना ज्यादा इजी है. मुझे मेंडले से सिखाया गया था, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फॉर एलटी स्पेसिफिकली डू मैनुअल रेफरेंसिंग. मेंडले इज बेसिकली अ टूल विच इज यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग. आर्टिकल शुड बी पब्लिश टू बिल्ड आवर सीवी. अच्छा, मैंने कल ही एक जो है मैच्ड एप्लीकेंट के सेशन अटेंड किया था. उसमें उन्होंने कहा यू नीड टू पब्लिश ओनली 4 to 5 गुड research papers. That's it. You need to publish 20 research papers. You need to publish only 4 to 5 good research papers. You need to publish only 4 to 5 पबमेड इंडेक्स. और अगर उन्होंने तो ये भी बोला था कि जो है पबमेड इंडेक्स नहीं भी हो, एटलीस्ट आपको उन रिसर्च पेपर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो रिसर्च पेपर पे आपने क्या काम किया. दैट्स इट. हाउ कैन वी फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स? कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर आपको ढूंढना नहीं पड़ता. जो आपके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एलटी, तो एलटी मोस्टली 1 से 2 लोग लिख रहे होते हैं, या 2 से 3 हार्डली. क्योंकि उसमें जो है फिर आपको करस्पॉन्डिंग ऑथर किसी एक पर्सन को ही करस्पॉन्डिंग ऑथर का काम करना होता है, एक को जो है वो बाकी बॉडी में जो ज्यादा काम करता है. ठीक है, या इंट्रो में जिसने इंट्रो इज अ शॉर्ट पार्ट, राइट, तो उसमें हम करस्पॉन्डिंग ऑथर का काम भी मोस्टली वो कर रहे होते हैं. तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन टीम वर्क. हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी पब्लिश. ठीक है, हाउ टू मोनिटाइज आर रिसर्च स्किल्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय मोनिटाइज. बेसिकली रिसर्च के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा उस चीज में अपने आप को इन्वेस्ट करोगे. अगर फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे पास वीकेंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल स्पेंड वीकेंड्स अपनी फैमिली के साथ करते हैं. कुछ लोग, मैं अपनी फैमिली के साथ भी करती हूँ, बट आई स्पेंड वीकेंड्स नाइट कि मैं उसमें रिसर्च की कोई चीज देख लूँ, चाहे वो कोई रिसर्च की वीडियो देखना हो, चाहे वो रिसर्च पेपर पे काम करना हो, कोई भी चीज हो. और ट्राई टू आस्क योर सीनियर कि वो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च सिखाएं. अच्छा, जिस तरह मैंने अपनी पहली रिसर्च जो थी वो किसी सीनियर के साथ नहीं करी थी, बट मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डिड रिसर्चेस विद सीनियर्स. मैंने नहीं करी थी. बट अगर आपके कोई सीनियर जो हैं जो हेल्पफुल हैं, डू कॉन्टेक्ट देम, वो आपको जरूर सिखाएंगे अगर उनके पास टाइम हुआ तो. What's the case about the quality of journals and how it affects the publication chances? क्वालिटी ऑफ जर्नल्स पब्लिकेशन चांसेस पे तो नहीं, मतलब डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स कि आप जो है अगर आपका हाई इम्पैक्टफुल जर्नल होगा तो इट विल बी गुड. There are many organizations offering mentorship. You can recommend one that is reliable or that one that you have used. अच्छा, mentorship मैं कहूँगी कि अगर, अच्छा, कुछ लोग समझते हैं मेंटरशिप जो है वो बहुत ज्यादा इजी काम है, बट मेंटरशिप बिल्कुल भी इजी काम नहीं है. मेंटरशिप के लिए आपको हर वक्त जो है वो अवेलेबल हो, हर वक्त नहीं, मतलब आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करना होता है. तो वो आपकी कमिटमेंट होती है. तो मैं ये कहूंगी कि इफ यू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, कि अगर आपको चीजें रीचेक करनी आती हैं बार बार, अगर आपको जो है कहीं पे अगर कोई रिसर्च रुक गई है उसे किस तरह, अगर आपको कंप्लीट ग्रिप है किसी भी रिसर्च टाइप पे, तो देन ही आपको उस चीज की मेंटोरशिप करनी चाहिए. अदरवाइज वो पेपर पब्लिश नहीं होगा. दिल कीप ऑन आस्किंग, और वहां से जो है वो आपकी एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पेपर को पब्लिश करें, वो फिर पूरा बहुत क्योस क्रिएट हो जाता है.
गुड मेंटोरशिप तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई डोंट सजेस्ट कि अगर आप मेंटोरशिप जो है, अगर अगर आपको मेंटोरशिप करनी भी है तो सिर्फ एक जगह करें बस. Don't go for number of platforms. Can you please share tools for paraphrasing and humanizing it? I'll share. I just don't remember the names, but I'll share. Using only the information from other articles is a requirement of LT or every other type of research. It's a type. It's requirement of every other type of research. अगर आप क्रॉस सेक्शन भी कर रहे हैं उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आपको उसमें भी रेफरेंसेस चाहिए. अगर आप सिस्टमिक रिव्यू भी कर रहे हैं उसमें भी करना है, ठीक है. अगर आप नरेटिव कर रहे हैं उसमें भी आपको चाहिए. हाउ डू आई फाइंड अ मेंटर? यू कैन फाइंड अ मेंटर थ्रू IMIG. IMIG इज ऑफरिंग नंबर ऑफ मेंटर्स, आप वहां से भी देख सकते हैं. यू कैन फाइंड मेंटर्स ऑनलाइन. यू कैन फाइंड मेंटर एज अ सीनियर. आप कोई अपनी सीनियर को अपना मेंटर असाइन, लाइक उनकी ऑब्वियसली परमिशन से आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वो फ्री हो तो आपकी हेल्प कर दें. यू कैन फाइंड मेंटर थ्रू नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स. जो हमारे पास डिफरेंट रिसर्च वर्कशॉप्स आती है उसमें पेड होती हैं, जिसमें मेंटरशिप भी आपको दी जाती है, और IMIG भी आई गेस ये इनिशिएटिव कर रहा है. तो यू कैन फाइंड मेंटर वेरी इजीली दीज डेज. Can't we write an LT solely without? Yes, you can write an LT solely. Many people write LT solely. Can we approach you to review our LT before submitting it? If I have time, believe me, I don't have time these days. When Irtiza contacted me, I just rethink about this whole thing for a whole day because I don't have time. I'll try. I can try to review it. I don't make any promise, but I'll try. And I have seen research poster. Do you have any idea about it? I have not presented any research poster up till now. I'll try कि मैं जो है फाइनल ईयर में करूं, बट अभी तक तो मैंने नहीं किया बिकॉज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहा है इस पूरे टाइम में, तो मैं सिर्फ रिसर्च पेपर्स पे ही काम कर सकी हूँ. ओके, आई थिंक दैट्स इट. Thank you so much for being a great audience. Like, I want this session to be exactly like this. Thank you so much.